सुबह का सूरज जैसे हर जन को नई उमंगों, आशाओं और जीवन से भर देता है। हर तम, हर बीमारी को समाप्त कर देने का ओज होता है सूर्य में। ऐसे ओज और गरिमा से दैदीप्यमान है माननीय प्रधानमंत्री जी। हम आपका हृदय से स्वागत करते हैं। मंच पर स्वागत है माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री JP नड्डा जी का, माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्रीगण माननीय श्री अश्विनी कुमार चौबे तथा माननीय श्रीमती अनुप्रिया पटेल का। स्वागत है प्रोफेसर रणदीप गुलेरिया, डायरेक्टर एम्स, डॉक्टर राजेंद्र शर्मा, मेडिकल सुपरिटेंडेंट VMMC एंड सफदरजंग हॉस्पिटल तथा श्री IS झा, CMD पावर ग्रिड का। जन अपेक्षा की जिम्मेदारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और इन 4 सालों की हर एक तारीख में, हर एक पल में, हर एक भारतवासी ने ये महसूस किया कि माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा नवनिर्मित भारत भारतीयों की अपेक्षाओं का, सपनों का ही तो भारत है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी भारत सम्मान को स्वास्थ्य सेवाओं की सौगात भेंट करने पधारे हैं। अब हम प्रोफेसर रणदीप गुलेरिया, डायरेक्टर एम्स से निवेदन करते हैं कि कृपया स्वागत संबोधन दें। Good morning. Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, Minister for Health and Family Welfare, Shri JP Nadda ji, Minister of State for Health and Family Welfare, Shri Ashwini Kumar Choube ji, Minister of State for Health and Family Welfare, Shrimati Anupriya Patel ji, Shri IS Jha, CMD Power Grid Corporation, my colleague, Dr. Rajendra Sharma, Medical Superintendent, Vardhaman Mahavir Medical College and Safdarjung Hospital, dignitaries of the dais, my faculty colleagues, ladies and gentlemen. It is indeed my honor and privilege to welcome the Honorable Prime Minister and other dignitaries for today's function. It is a momentous day for healthcare in the country as the Honorable Prime Minister is here to dedicate to the nation 5 projects of AIIMS and Safdarjung Hospital. These 2 hospitals are the hub of healthcare for the poor and needy, not only for Delhi, but for a large part of North India. In the past few years, healthcare has got the undivided attention of the Honorable Prime Minister and the government, and due to this, there have been rapid expansions in healthcare facilities and services in the country. And now, with Ayushman Bharat, there will be a new era of healthcare in India. AIIMS and Safdarjung Hospital, too, have benefited from these policies of the government. Medicine itself is changing dramatically with new technology and advancements coming into healthcare. Therefore, hospital infrastructures need to change and adapt accordingly so as to provide the best healthcare for our patients, no matter what their socioeconomic status. Sir, as you will see in the videos, that all the new centers that are coming up have the latest state-of-the-art facilities. AIIMS New Delhi has been or was conceived in 1956 and has strived to be the torchbearer for the nation in the trinity of mission of education, research, and patient care. Our workload is increasing day by day, and now we have a footfall of more than 12,000 patients in the OPD every day, and the Institute is taking care of almost 40 lakh patients annually. Keeping this in mind, we are planning to expand in a big way. In the next few months, we will operationalize our new OPD block, the Mother and Child block, the surgery block in this campus, and the National Cancer Institute at our campus in Jhajjar. Over the next few days, we will also start a new state-of-the-art laboratory to enable skill development and e-learning among our students, and also provide training to other institutions throughout with telemedicine facilities. With this facility, we can now impart skill training to institutions even in remote parts of the country. But this is not enough. Recognizing the ever-growing need and the demand over the next decades in medical care, research, and academics, we are now working on a master plan where we intend to make our entire East and Sarinagar campus one large hospital with centers of excellence embedded in it. Also in this area, we will develop high-end research facilities to promote innovative research in different areas, including genomics, big data analysis, regenerative medicine, and nanomedicine. Simultaneously, in the Western campus, we will develop multi-story apartments for our staff, as the number will also increase rapidly.
We are also looking at new ideas to provide better health care. An MOU is being signed with IIT Delhi and IIT Kharagpur to promote research and combine programs in biomedical engineering. We also are planning to develop an incubation hub and a biopark to support our researchers so that the work that they do can move on to a new level and we can help them to bring medical products made in India into the market. Sir, we are grateful to you for having spared your precious time for dedicating these 5 projects of AIIMS and Safdarjung Hospital to the nation. Your constant and continuous support to AIIMS over the last 4 years is our inspiration, and we shall work under your guidance to provide the best of healthcare to our patients. I take this opportunity to also warmly welcome the dignitaries from the Health Ministry and all other esteemed guests to this function. Thank you. Jai Hind. धन्यवाद प्रोफेसर गुलेरिया। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी के हर विजन और मार्गदर्शन को मिशन के तौर पर फलीभूत करने वाले माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री JP नड्डा से अब हमारा अनुरोध है कि कृपया आज के इस शुभ अवसर पर अपने विचार प्रकट करें। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्रालय में मंत्री सम्माननीय अश्विनी चौबे जी, मैडम अनुप्रिया पटेल जी, हमारे एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया जी, हमारे सफदरजंग के MS राजेंद्र शर्मा जी और पावर ग्रिड के हमारे CMD मिस्टर झा, यहाँ उपस्थित एम्स फैकल्टी के सभी गणमान्य सदस्यगण, मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी और हमारे प्रिय छात्र साथियों, आज ये हम सब के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में जो 5 और सफदरजंग में जो 5 नए कार्यक्रम शुरू हो रहे हैं, उसका श्री गणेश करने के लिए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आए हैं। मैं अपनी ओर से और आप सब की ओर से उनका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उनका आना, उनकी गरिमामयी यहाँ उपस्थिति इस बात को इंगित करती है कि उनका स्वास्थ्य के दृष्टि से और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की दृष्टि से जो लगाव है, जो प्रेम है और जो टर्शरी हेल्थ केयर को बढ़ावा देने का काम पिछले 4 सालों में उन्होंने किया है, वो उसका जीता जागता प्रमाण है कि आज उन सारी चीज़ों को डेडिकेट करने के लिए वो हम सबके बीच में हैं। जहाँ तक आज अभी हमको एक फिल्म में दिखाया जाएगा कि कौन कौन सी चीज़ों को और किस तरीके से उसका स्वास्थ्य की दृष्टि से लाभ मिलने वाला है, लेकिन हाँ, सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक, उसी तरीके से हमारा इमरजेंसी ब्लॉक, उसी तरीके से जेरियाट्रिक एजिंग सेंटर और उसके साथ साथ विश्राम गृह और जो टनल जो दोनों इंस्टीट्यूशंस को जोड़ती है, उसका आज डेडिकेशन होगा और उससे इस क्षेत्र में जो हम काम करने में सुविधा होगी वह सच में सराहनीय है। पिछले 4 सालों में जहाँ तक स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर हम बात करें सिर्फ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की, तो हम कह सकते हैं कि ये तो आज डेडिकेट होंगे, लेकिन इसके साथ साथ जो काम चल रहा है, 4 हॉस्टल्स बन करके तैयार हुए हैं और वो किसी भी समय डेडिकेट किए जा सकते हैं। उसमें कुल मिलाकर के 864 रूम्स का प्रावधान है। गर्ल्स एंड बॉयज़ हॉस्टल्स जो बन रहे हैं लगभग 200 करोड़ की लागत से। उसी तरीके से सर्जिकल ब्लॉक जो नवंबर दिसंबर तक तैयार हो जाएगा, उसमें भी लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से वो बन रहा है और उसमें 200 बेड और 12 ऑपरेशन थिएटर्स की व्यवस्था की गई है। मदर एंड चाइल्ड सेंटर लगभग 300 करोड़ की लागत से बन रहा है और यह भी नवंबर तक तैयार हो जाएगा। इसमें 425 बेड कैपेसिटी विद 16 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर्स की फैसिलिटीज़ हैं।
और उसी तरीके से ओपीडी ब्लॉक, ये अपने आप में एक बहुत ही अजूबा, जिसको हम कह सकते हैं मोस्ट मॉडर्न ओपीडी ब्लॉक होगा। 8 फ्लोर्स का होगा और इसमें 500 ओपीडी रूम्स होंगे, 1000 सिटिंग कैपेसिटी इन ईच फ्लोर। तो हम समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी जो एम्स पर प्रेशर आया है उसको ईज आउट करने के लिए कितना लाभकारी होगा। तो ऐसा 1900 to 1000 सिटिंग कैपेसिटी इन ईच फ्लोर और 500 से ज़्यादा ओपीडी रूम्स ये बनने वाले हैं। नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट झज्जर जो 2000 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है, वह भी तैयार हो जाएगा और लगभग अक्टूबर-नवंबर तक, और उसको भी प्रधानमंत्री जी देश को डेडिकेट करेंगे। बहुत तीव्र गति से काम चल रहा है। तो मैं सिर्फ आपके सामने ये इसलिए बता रहा हूँ कि मात्र ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली में ही इस समय मोर देन 3000 करोड़ का काम चल रहा है और इसके साथ साथ 1500 बेड कैपेसिटी का इंक्रीज होने का काम चल रहा है, जिसको हम लोगों ने आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। ये प्रधानमंत्री जी का कमिटमेंट फॉर टर्शरी हेल्थ केयर, बाकी जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज हैं, कोई 1300 करोड़ रुपए की लागत का है, कोई 1200 करोड़ की लागत का है, सब पर काम तीव्र गति से चल रहा है, उसको भी सिस्टमेटाइज किया है। तो आपके नेतृत्व में टर्शरी हेल्थ केयर में एक जिसको बोलते हैं मूल चूल परिवर्तन करने का प्रयास हुआ है। सेंट्रल इंडिया, नॉर्थ इंडिया और ईस्टर्न इंडिया जो टर्शरी हेल्थ केयर से लगभग वंचित से थे, वो आज सभी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के बनने से देश में जो दिल्ली पर लोड है उसको भी हम कम कर सकेंगे और सब जगह पर इसको इस तरह के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज को हम रेप्लिकेट कर सकेंगे। हमारी कोशिश है कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का जो ब्रांड है यही रेप्लिकेट हो, और इसको रेप्लिकेट करने के लिए हम लोगों ने बहुत पॉलिसी डिसीजंस लिए हैं, जिसके कारण, और ये फैकल्टीज़ का इंटरचेंजेबल, यहाँ की फैकल्टी उन इंस्टीट्यूट्स में कुछ समय लगाए, वहाँ की फैकल्टी यहाँ आकर के कुछ सीखे, ताकि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का जो वर्क कल्चर है वो देश भर में ट्रांसलेट हो सके। इस तरीके से हम काम करने के लिए आपके नेतृत्व में हेल्थ फोरफ्रंट पर आ जाकर के खड़ा हुआ है। अगर हम याद करें तो हेल्थ हमेशा एक ऐसा विषय रहता था जिसको प्रायोरिटी बहुत पीछे मिलती थी, लेकिन आपके नेतृत्व में आज हेल्थ फोरफ्रंट पर है। अगर हम बजट की बात करें, अगर हम प्रेसिडेंशियल एड्रेस की बात करें, तो हर में हेल्थ के प्रति जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कमिटमेंट है वो सामने उजागर होता है। उसको हम आपके सामने रखना चाहते हैं। एक तो कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ पॉलिसी की तरफ हम बढ़े हैं, और कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ पॉलिसी की तरफ जब हम बढ़े हैं तो प्रिवेंटिव और प्रोमोटिव, प्रधानमंत्री जी का ये कहना है कि रोग से निरोग की ओर चलो, और काया रोगी हो ही नहीं, निरोगी रहे, इस बात की भी हमको चिंता करने की जरूरत है। और इसीलिए हम लोगों ने प्रयास किया है, हर एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में आयुष के साथ उसको हम जोड़ रहे हैं, और मेन स्ट्रीमिंग ऑफ ऑल पैथीज कर रहे हैं। को शेयरिंग एंड क्रॉस रेफरल्स दोनों हम इस पैथी के साथ कर रहे हैं, और डॉक्यूमेंट करके कर रहे हैं, ताकि डॉक्यूमेंटेशन के साथ मॉडर्न मेडिसिन के लोग भी इन सारे पैथीज के प्रति आदर भाव रखते हुए उसको हम आत्मसात कर सकें। इस बात के लिए हम प्रयासरत हैं। आपका कहना रहा है कि हम अफोर्डेबल और एक्सेसिबल मेडिसिन दें, और उस काम के लिए प्रधानमंत्री जी जो आपने कमिटमेंट के साथ इसको बजट में प्रावधान किया है, इसके लिए देश ही नहीं दुनिया इसको अपने आप में एक सबसे बड़ा हेल्थ केयर मेजर मान रही है, जो आपका मोदी केयर है, आयुष्मान भारत है, जो सारे का सारा परिवर्तन ला करके खड़ा करेगा दुनिया। प्रधानमंत्री जी, इस बार मैं वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में गया था, डायरेक्टर जनरल वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने कहा, स्पीक अबाउट आयुष्मान, स्पीक अबाउट मोदी केयर, बिकॉज वर्ल्ड वांट्स टू नो हाउ दिस लार्जेस्ट हेल्थ केयर प्रोग्राम इज गोइंग ऑन। तो ये एक आशा के साथ हम आगे बढ़े हैं। देश के 40% लोग जो गरीब, जो वंचित रह जाते थे, जो अस्पताल तक जाने की हिम्मत नहीं करते थे, उनको 5 लाख का हेल्थ कवर दे करके सालाना परिवार को 55 करोड़ लोगों को, 50 से 55 करोड़ लोगों को जोड़ने का प्रयास हुआ है। इस तरीके से इस काम को आगे बढ़ाया गया है। यही नहीं, 1.5 लाख सब सेंटर्स को वेलनेस सेंटर में बदलना,
एक कल्याण केंद्र के रूप में बदलना, ये जो आपका फैसला है जिसको हम लोग 2022 तक पूर्णतः अक्षरशः लागू कर देंगे, उसके करने से डिजीज बर्डन बहुत घटेगा और इसका नतीजा हमको सामने आएगा जब 30 साल के व्यक्ति का यूनिवर्सल स्क्रीनिंग हम करेंगे फॉर सर्विक्स कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ओरल कैंसर, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, मेंटल हेल्थ केयर, ट्यूबरक्लोसिस और लेप्रेसी। इन सब का जब हम 30 साल में स्क्रीनिंग करेंगे तो ऑटोमेटिकली डिजीज बर्डन घटेगा। इस तरीके का जो आपकी सोच है उसको हम सामने ला करके करने का प्रयास कर रहे हैं और आपकी सोच से निकला हुआ ये जो नीति है वह एक परिवर्तन की ओर आ रहा है। मैं पुनः प्रधानमंत्री जी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि टर्शरी हेल्थ केयर से लेकर के सेकेंडरी और प्राइमरी हेल्थ केयर, जिस पर सब पर आपने जोर दे करके कार्यक्रम को चलाया है और उसकी नीतियां तय की हैं, उसको हम अक्षरशः लेटर एंड स्पिरिट में हम उसको लागू करेंगे। स्वास्थ्य विभाग उसके लिए कमिटेड है और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के डॉक्टर्स को मैं बधाई देता हूं जिन्होंने क्वालिटी और क्वांटिटी दुनिया में नाम बनाया है। एक साथ आप इतने बड़े फुटफॉल्स को संभालते हैं और आप देखते हैं, तो इसलिए मैं आपका धन्यवादी हूं। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम निश्चित रूप से पूरी ताकत लगा करके स्वास्थ्य में जो आप चाहते हैं कि वह एक आगे देश की तस्वीर बदले, उसमें हम लगे हुए हैं। आपके जो मार्गदर्शन हमको मिलता है, जो ताकत मिलती है, उसको हम पूरा लगा रहे हैं और आपकी दूरदृष्टि से ये सारे परिवर्तन आ रहे हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। धन्यवाद माननीय। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा एम्स तथा सफदरजंग अस्पताल की 5 परियोजनाओं का शुभारंभ तथा लोकार्पण किया जाएगा। दिल्ली के मध्य में स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स एवं सफदरजंग अस्पताल देश का एक विशाल स्वास्थ्य सेवाओं का हब है, जो दिल्ली और पड़ोसी राज्यों की बड़ी संख्या की स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करता है। समाज की 2 पीढ़ियों को अपनी उंगली पकड़कर रास्ता दिखाने वाले हमारे वृद्धजनों को ज़रूरत होती है सहारे की। एम्स का नेशनल सेंटर फॉर एजिंग का शिलान्यास करके माननीय प्रधानमंत्री जी यही भावनाएं अर्पित करने आए हैं। हम माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र निवेदन करते हैं कि कृपया एम्स के नेशनल सेंटर फॉर एजिंग की शिलान्यास पट्टिका का अनावरण करें रिमोट का बटन दबाकर। आइए देखते हैं और जानकारी प्राप्त करते हैं एक छोटी सी फिल्म के द्वारा। संबंधी किए गए कार्यों के परिणाम स्वरूप देश में आबादी की आयु में वृद्धि हुई है। बढ़ते वृद्धजन की संख्या को उच्चतम स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय वृद्धजन स्वास्थ्य सेवा योजना बनाई गई है, जिसके अंतर्गत एम्स नई दिल्ली में नेशनल सेंटर फॉर एजिंग की स्थापना की जा रही है। इस सेंटर के कुछ मुख्य लक्ष्य हैं: जैविक और सामाजिक जेरोंटोलॉजी और पोस्ट डॉक्टरेट पाठ्यक्रमों की शुरुआत करना तथा वृद्धावस्था विज्ञान में अनुसंधान करना, समुदाय के फॉलोअप रोगियों की देखभाल करने के लिए आउटरीच कार्यक्रम विकसित करना। कुल 200 जनरल वार्ड बेड्स की क्षमता वाले इस केंद्र के 20 आईसीयू बेड्स, 10 प्री ऑपरेटिव बेड्स और 15 पोस्ट ऑपरेटिव आईसीयू बेड्स होंगे। कुल 330 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना का निर्माण वर्ष 2020 तक किया जाएगा। दिल्ली में एम्स स्थित नेशनल सेंटर फॉर एजिंग, जिसका शिलान्यास भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा किया जारहा है, अपने आप में एक मल्टी स्पेशलिटी स्वास्थ्य केंद्र होगा। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। ट्रैफिक क्यों रुकावट बने इलाज में? बस इसी सोच से बनी एम्स और ट्रॉमा सेंटर के बीच 997 मीटर भूमिगत सुरंग। हम माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र आग्रह करते हैं कि कृपया मुख्य बिल्डिंग एम्स तथा जयप्रकाश नारायण एपेक्स ट्रॉमा सेंटर के बीच सुरंग का लोकार्पण करें। आइए देखते हैं एक छोटी सी फिल्म।
दिल्ली की रिंग रोड ही एम्स की मुख्य बिल्डिंग और जयप्रकाश नारायण एपेक्स ट्रॉमा केंद्र को कनेक्ट करने वाला एकमात्र रास्ता है, जिसकी वजह से मरीजों और डॉक्टरों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में काफी परेशानी हो रही थी। इस समस्या से निजात पाने के लिए इन दोनों परिसरों के बीच एक भूमिगत सुरंग बनाने का निर्णय लिया गया। ये टनल इन दो परिसरों के अलावा सफदरजंग अस्पताल के सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक तथा एम्स के वेस्ट अंसारी नगर स्थित आवासीय परिसर को भी कनेक्टिविटी प्रदान कर रहा है। कुल 997 मीटर लंबी इस टनल के निर्माण की जिम्मेदारी दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को दी गई। कुल 44 करोड़ रुपए की लागत से बनी इस टनल को कट एंड कवर प्रक्रिया द्वारा बनाया गया है। इस टनल की कुल लंबाई का 369 मीटर हिस्सा भूमिगत है तथा 403 मीटर ग्रेड पर और 225 मीटर रैंप पर है। इस टनल के चालू हो जाने से मरीजों, डॉक्टरों एवं अन्य महत्वपूर्ण संसाधनों को एक कैंपस से दूसरे कैंपस तक आसानी से पहुंचाया जा सकता है। धन्यवाद माननीय। अब इलाज की सुविधा ही नहीं बल्कि रुकने की सुविधा पूर्ण व्यवस्था भी होगी ट्रॉमा सेंटर में रोगियों और उनके परिवारजनों के लिए, वो भी बिल्कुल मामूली दर पर। हम माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र आग्रह करते हैं कि कृपया जयप्रकाश नारायण एपेक्स ट्रॉमा केंद्र में विश्राम सदन को लोकार्पित करें। आइए देखते हैं ये फिल्म। जयप्रकाश नारायण एपेक्स ट्रॉमा केंद्र में रैन बसेरा का निर्माण पावर ग्रिड कॉरपोरेशन और एम्स द्वारा सम्मिलित रूप से किया गया। कुल 300 बेड्स वाली इस सुविधा का लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया जा रहा है। ये विश्राम सदन उन रोगियों तथा उनके परिजनों के लिए है जो एम्स तथा ट्रॉमा केंद्र में इलाज के लिए आए हुए हैं। ये सुविधा इनको मामूली दर पर प्रदान की जा रही है। इस विश्राम सदन में बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर के अलावा कुल 10 मंजिल हैं, जिनका कुल क्षेत्रफल 9,500 वर्ग मीटर है। इस विश्राम सदन के सभी कमरों में सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं और भवन की छत पर एक हेलीपैड का निर्माण भी कराया गया है, जिस पर हेली एम्बुलेंस उतारी जा सकती है। इस परियोजना की कुल लागत 32.67 करोड़ रुपए है। धन्यवाद माननीय। मरीजों के लिए ना बेड्स की कमी हो, ना आईसीयू की और ना ही ऑपरेशन थिएटर की। यही तो उद्देश्य है सफदरजंग अस्पताल में पुनर्विकास योजना के तहत संपूर्ण चिकित्सा सुविधाओं से सुसज्जित इमरजेंसी ब्लॉक की। हम माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र निवेदन करते हैं कि कृपया इस इमरजेंसी ब्लॉक को राष्ट्र को समर्पित करें। प्रस्तुत है ये छोटी सी फिल्म। सफदरजंग अस्पताल भारत के सबसे बड़े सरकारी अस्पतालों में से एक है। 1531 बेड्स वाला यह अस्पताल पूरे हिंदुस्तान में अपनी बेहतरीन चिकित्सा के लिए जाना जाता है। इस अस्पताल में मरीजों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए सफदरजंग अस्पताल के पुनर्विकास की योजना बनाई गई, जिसके तहत 346 करोड़ रुपए की लागत से एक इमरजेंसी ब्लॉक की स्थापना की गई। इस इमरजेंसी ब्लॉक में कुल 500 बेड्स हैं, जिसमें 68 आईसीयू और 17 आधुनिक मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, एक सीटी स्कैन, एमआरआई और अन्य आधुनिक चिकित्सकीय उपकरणों की व्यवस्था की गई है। संपूर्ण चिकित्सा सुविधाओं से सुसज्जित इस भवन का निर्माण HSCC इंडिया लिमिटेड द्वारा किया गया है। इस इमरजेंसी ब्लॉक को भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक, जैसा नाम वैसा काम। अत्यधिक नवीनतम आधुनिक उपकरणों तथा टेक्नोलॉजी से परिपूर्ण। गरीब मरीज भी अब ना हो परेशान, क्योंकि सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक उनके लिए भी तो है वरदान।
हम माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र अनुरोध करते हैं कि कृपया सफदरजंग अस्पताल सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का उद्घाटन करें। प्रस्तुत है ये फिल्म। सफदरजंग अस्पताल के पुनर्विकास के पहले चरण में 1431 करोड़ की लागत से एक सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक और एक इमरजेंसी ब्लॉक की स्थापना की गई है, जिससे सफदरजंग अस्पताल में 1307 बेड्स और जोड़ दिए जाएंगे और इसके फलस्वरूप मरीजों की चिकित्सकीय क्षमता में लगभग 2 गुनी वृद्धि हो गई। इस सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में कुल 807 नए बेड्स हैं, जिसमें 430 जनरल, 228 पेड, 125 आईसीयू, 24 हार्ट कमांड एवं आपातकालीन तथा 20 आधुनिकतम मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की व्यवस्था की गई है। 1,11,000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का यह भवन पूर्णतः पर्यावरण अनुकूल और ग्रीन बिल्डिंग संकल्प के आधार पर बनाया गया है। यह अस्पताल पेपरलेस तथा HIMS, PACS तथा क्यू मैनेजमेंट सिस्टम से लैस है और इसका निर्माण HSCC इंडिया लिमिटेड द्वारा किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा उद्घाटन किए जाने वाले इस सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में नवीनतम उपकरणों एवं आधुनिक पद्धतियों से लैस कार्डियोलॉजी, कार्डियोथोरेसिक वैस्कुलर सर्जरी, न्यूरोसर्जरी, न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, यूरोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी, रीनल ट्रांसप्लांट तथा पल्मोनरी डिपार्टमेंट्स हैं। सरकार द्वारा इस ब्लॉक के उद्घाटन पश्चात दिल्ली एवं समीप के राज्यों के गरीब मरीजों के लिए यह महत्वपूर्ण एवं निर्णायक कदम एक वरदान साबित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार माननीय प्रधानमंत्री जी आपका। इन 4 सालों में उन्नति और उत्थान का मानो उत्सव मना रहा हो देश। माननीय प्रधानमंत्री जी अपनी सारी ऊर्जा देश हित में लगा रहे हैं। भारत की जनता को परिवार कहने मानने वाले विलक्षण व्यक्तित्व माननीय प्रधानमंत्री जी को अपने भारत जनों के स्वास्थ्य का ख्याल भी खूब है। आज इन परियोजनाओं का शुभारंभ, लोकार्पण इस बात को फिर सिद्ध करता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी न सिर्फ समृद्ध भारत, शक्तिशाली भारत, संगठित भारत, स्वावलंबी भारत, संस्कारित भारत को बना रहे हैं, बल्कि स्वस्थ भारत के सपने को सिद्धि तक भी पहुंचा रहे हैं। हम विनम्र अनुनय करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कि कृपया हम सबको संबोधित करें। मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्रीमान JP नड्डा जी, अश्विनी चौबे जी, अनुप्रिया पटेल जी और इस मंच पर उपस्थित श्रीमान रणदीप गुलेरिया जी, CIS झा, डॉक्टर राजेंद्र शर्मा और सभी महानुभाव, दिल्ली के लोगों के लिए, इलाज के लिए, दिल्ली आने वाले लोगों के लिए, आप सभी के लिए एक प्रकार से आज का विशेष दिन है और मुझे खुशी है कि आज गरीबों को, सामान्य जन को, निम्न मध्यम वर्ग को अपने जीवन की मुश्किल परिस्थिति से पार पाने के लिए, अपनी या स्वजनों की बीमारी से लड़ने में मदद करने के लिए कुछ नए आधार स्तंभ प्राप्त हो रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले यहाँ पर लगभग 1700 करोड़ के नए प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। इससे दिल्ली में मौजूद देश के 2 बड़े अस्पतालों, एम्स और सफदरजंग अस्पताल में करीब 1800 से अधिक बेड की नई कैपेसिटी का मार्ग खुला है।
फ्रेंड्स, एम्स पर बढ़ते दबाव को देखते हुए दिल्ली में इसके सभी कैंपसों की क्षमता को बढ़ाया जा रहा है। आज 300 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनने वाले नेशनल सेंटर फॉर एजिंग का भी शिलान्यास हुआ है। ये सेंटर 200 बेड्स का होगा। आने वाले डेढ़ दो वर्षों में इसे पूरा करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। यहाँ वरिष्ठ नागरिकों के लिए तमाम सुविधाएं होगी। इसमें वृद्धावस्था विज्ञान अनुसंधान केंद्र भी होगा, जहाँ वृद्धावस्था से जुड़ी समस्याओं को लेकर रिसर्च की जा सकेगी। इसके अलावा सफदरजंग अस्पताल में भी 1300 करोड़ से अधिक राशि खर्च करके अस्पताल में सुविधाओं को और आधुनिक बनाने का काम हुआ है। इसी के तहत यहाँ एक इमरजेंसी ब्लॉक पर एक सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक की सेवाओं को देश को समर्पित किया गया है। सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी के लिए 500 बेड्स की नई क्षमता के साथ सफदरजंग अस्पताल देश का सबसे बड़ा इमरजेंसी केयर अस्पताल बन जाएगा। साथियों, आज जिन 5 प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है, उनमें से एक पावर ग्रिड विश्राम सदन भी है। सार्वजनिक उपक्रमों और समाज के प्रति उनकी जिम्मेदारी का एक उत्तम उदाहरण है। इससे न सिर्फ मरीजों को बल्कि उनकी देखरेख करने वालों को भी बहुत बड़ी राहत मिल रही है। साथियों, समय पर सही इलाज जीवन बचाने में एक अहम भूमिका निभाता है, लेकिन दिल्ली का ट्रैफिक कई बार इसमें बाधक बन जाता है। विशेष तौर पर एम्स के अलग अलग सेंटर और कैंपस के बीच मरीजों और डॉक्टरों की आवाजाही को लेकर पहले बहुत बड़ी समस्या थी। एम्स की मुख्य बिल्डिंग और जयप्रकाश नारायण ट्रॉमा सेंटर के बीच ये समस्या भी अब सुलझ गई है। लगभग 1 किलोमीटर लंबी अंडरग्राउंड सुरंग का भी थोड़ी देर पहले लोकार्पण करने का अवसर मिला। इस टनल से मरीजों, उनके रिश्तेदारों, डॉक्टरों और जरूरी दवाइयों, यंत्रों को बिना रुकावट आवाजाही सुनिश्चित हुई है। साथियों, भारत जैसे हमारे विशाल विकासशील देश के लिए सस्ती, सुलभ, सुरक्षित और आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं जुटाना कितनी बड़ी जिम्मेवारी है, इससे आप भली भांति परिचित है। बीते 4 वर्षों में पब्लिक हेल्थ केयर को लेकर देश को एक नई दिशा दी गई है। केंद्र सरकार के एक के बाद एक पॉलिसी इंटरवेंशन से हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां देश के गरीब और मध्यम वर्ग को बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भटकना न पड़े, अनावश्यक खर्च न करना पड़े। राज्य सरकारों के साथ मिलकर केंद्र सरकार देश भर में स्वास्थ्य सेवा से जुड़ा आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रही है। ये सरकार के निरंतर प्रयासों का परिणाम है कि आज देश में अस्पतालों में बच्चों को जन्म देने का प्रचलन, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, उसका प्रचलन बढ़ा है। गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य की निरंतर जांच, टीकाकरण में 5 नई वैक्सीन जोड़ने से मातृ और शिशु मृत्यु दर में अभूतपूर्व कमी आई है। इन प्रयासों को अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज ने भी सराहा है। साथियों, सरकार का प्रयास है कि बड़े शहरों के आसपास जो स्वास्थ्य का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है, उसको सुदृढ़ करने के साथ साथ ऐसी ही सुविधाएं टियर 2 और टियर 3 शहरों तक पहुंचाई जाए। इसके लिए सरकार 2 व्यापक स्तर पर काम कर रही है। एक तो जो हमारे मौजूदा अस्पताल है, उनको और अधिक सुविधाओं से लैस किया जा रहा है, और दूसरा देश के दूर दराज वाले इलाकों में
स्वास्थ्य सुविधाओं को पहुंचाया जा रहा है। साथियों, आजादी के 70 वर्षों में जितने एम्स स्वीकृत हुए या बनाए गए, उससे अधिक बीते 4 वर्षों में मंजूर किए गए। देश में 13 नए एम्स की घोषणा की गई है, जिसमें से 8 पर काम शुरू हो चुका है। इसके अलावा देश भर में 15 मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। साथियों, न्यू इंडिया के लिए एक ऐसी स्वास्थ्य व्यवस्था का निर्माण किया जा रहा है जहां उत्तम और पर्याप्त अस्पताल हो, ज्यादा बेड हो, बेहतर सुविधाएं हो और श्रेष्ठ डॉक्टर और उनकी टीम हो। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए मेडिकल एजुकेशन में भी नए अवसरों का निर्माण किया जा रहा है। हमारी सरकार 58 डिस्ट्रिक्ट्स में अस्पतालों को मेडिकल कॉलेज के तौर पर अपग्रेड करने का काम कर रही है। इस बजट में ही सरकार ने 24 नए मेडिकल कॉलेज बनाने का ऐलान किया है। सरकार का प्रयास है कि 3 लोकसभा सीटों पर कम से कम एक मेडिकल कॉलेज अवश्य हो। इन 4 वर्षों में देश भर में मेडिकल की लगभग 25,000 अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट नई सीटें जोड़ी गई है। सरकार ने एडमिशन प्रोसेस को भी और पारदर्शी बनाने का काम किया है। साथियों, इस सरकार का विजन सिर्फ अस्पताल, बीमारी और दवाई और आधुनिक सुविधाओं तक ही सीमित नहीं है। कम खर्च पर देश के हर व्यक्ति को इलाज सुनिश्चित हो, लोगों को बीमार बनाने वाले कारणों को खत्म करने का प्रयास हो। इसी सोच के साथ नेशनल हेल्थ पॉलिसी का निर्माण किया गया है। हमारी सरकार ने स्वास्थ्य सेवा को स्वास्थ्य मंत्रालय के दायरे से बाहर निकालने का भी प्रयास किया है। हमारे स्वास्थ्य के विजन के साथ आज ग्रामीण विकास मंत्रालय भी जुड़ा है, स्वच्छता और पेयजल मंत्रालय भी जुड़ा है, महिला और बाल विकास मंत्रालय को भी उसके साथ जोड़ा गया है और इन सभी को हमारी पारंपरिक स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त कर और आयुष मंत्रालय से भी सहयोग मिल रहा है। सरकार के विजन में बीमारी और गरीबी के बीच जो संबंध है, उसे देखते हुए योजनाएं बनाई गई हैं, उन्हें लागू करने का भरपूर प्रयास किया गया है। गरीबी की बड़ी वजह बीमारी भी है और इसलिए बीमारी को रोकने का मतलब गरीबी को भी रोकना होता है। इसी दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालयों का निर्माण, मिशन इंद्रधनुष के तहत दूर दराज वाले इलाकों में टीकाकरण, राष्ट्रीय पोषण अभियान और आयुष्मान भारत जैसी अनेक महत्वाकांक्षी योजनाएं गरीब का बीमारी पर होने वाला खर्च कम कर रही है। प्रिवेंटिव और एफोर्डेबल हेल्थ केयर को लेकर जितनी गंभीरता से देश में अभी काम हो रहा है, उतना शायद पहले कभी नहीं हुआ। नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम या आयुष्मान भारत भी इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इस योजना के तहत देश भर में लगभग 1.5 लाख यानी देश की हर बड़ी पंचायत के बीच एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्थापित करने पर काम चल रहा है। भविष्य में इन सेंटरों में ही बीमारी की पहचान के लिए टेस्ट और उपचार की आधुनिक सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी। इसका बहुत बड़ा लाभ गांव और कस्बों में रहने वाले लोगों को भी मिलने जा रहा है। वहीं गंभीर बीमारी की स्थिति में देश के गरीब और निम्न मध्यम वर्ग के लोगों को उत्तम
और 5 लाख तक का मुफ्त इलाज सुनिश्चित करने पर काम चल रहा है। इस योजना से ज्यादा राज्यों को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। निजी अस्पताल से जुड़े लोगों से भी चर्चा चल रही है। मोटे तौर पर अनेक विषयों में सभी स्टेक होल्डर्स के साथ सहमति बन चुकी है और बहुत जल्द ये दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ एश्योरेंस स्कीम जमीन पर उतरने वाली है। साथियों, ये योजना सिर्फ गरीबों के लिए ही जीवन दान देने वाली है, इतना नहीं है, बल्कि मेडिकल सेक्टर में एक अभूतपूर्व अवसर पैदा करने वाली एक नई क्रांति की मिसाल है। इस योजना की वजह से आने वाले समय में देश के गांव और छोटे कस्बों के आसपास जो अस्पतालों का बड़ा नेटवर्क बनना सुनिश्चित है। बहुत बड़ी मात्रा में नए अस्पताल बनना बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि जब बीमारी का खर्च कोई और उठाने वाला है तो बीमार अस्पताल जाना पसंद करने वाला है, जो आज जाना टालता है। और बीमार अस्पताल आने के बाद पैसे कहीं से मिलना ये सुनिश्चित है, तो अस्पताल और डॉक्टर भी सामने से काम करने के लिए तैयार है। और एक प्रकार से एक ऐसी व्यवस्था विकसित हो रही है जो देश में ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मेडिकल सेक्टर में, देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट और हेल्थ कॉन्शियस सोसाइटी के रूप में हम एक नए युग के अंदर प्रवेश करने वाले हैं। और इस सेक्टर में रोजगार के अवसर तो बढ़ने ही वाले हैं। हम जानते हैं एक डॉक्टर के साथ कितने लोगों को काम करना पड़ता है, तब एक डॉक्टर कुछ परफॉर्म कर पा रहा है। कितने लोगों के लिए रोजगार की संभावना है। हाँ, आधुनिक चिकित्सा सेवाओं के लिए बड़े शहरों की तरफ आने की मजबूरी भी मैं समझता हूं बहुत एक मात्रा में कम हो जाएगी। लोगों को अपने घर के पास ही सारी सुविधाएं मिलेगी। साथियों, बीते 4 वर्षों में एफोर्डेबल हेल्थ केयर को लेकर जो भी योजनाएं सरकार ने चलाई हैं, उनका कितना लाभ सामान्य जन को हो रहा है, ये जानने के लिए इस महीने की शुरुआत में मैंने खुद देश भर के लाभार्थियों से संवाद किया था। करीब 3 लाख सेंटर से, और मेरा अंदाज है 30-40 लाख लोग मेरे सामने थे। उस पर और उस पूरी चर्चा से एक बात जो निकल करके आई वो ये कि निम्न मध्यम वर्ग से लेकर गरीब व्यक्ति के स्वास्थ्य के खर्च में आज बहुत कमी आई है। साथियों, इसका कारण आप सभी भली भांति जानते हैं। सरकार द्वारा करीब 1100 आवश्यक दवाइयों को मूल्य नियंत्रक व्यवस्था के दायरे में लाया गया है। इससे लोगों को लगभग दवाई के पीछे जो खर्च होता था, उन परिवारों को लगभग 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की बचत हुई है। एक वर्ष में 10,000 करोड़ रुपए सेविंग, और वो भी एक योजना का परिणाम। देश भर में 3,600 से अधिक जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं। इन केंद्रों में 700 से अधिक दवाइयों और 150 से अधिक सर्जरी के सामान सस्ते दाम पर उपलब्ध है। अमृत स्टोर्स में भी मिल रही 50% कम कीमत की दवाइयों का लाभ लगभग 75-80 लाख मरीज उठा चुके हैं। इसके अलावा आज स्टेंट्स और नी इम्प्लांट की कीमत में कमी से देश के गरीब और मध्यम वर्ग के लगभग 5,500 करोड़ की बचत हुई है। इनकी कीमतें पहले के मुकाबले लगभग 1/3 हो गई है, 3 गुना कम हो गई है। साथ ही जीएसटी के बाद भी कई दवाइयों की कीमत कम होने से लोगों को भी लाभ मिला है।
देश के लगभग हर जिले में डायलिसिस सेंटर बनाए। यहां गरीबों को निशुल्क डायलिसिस की सुविधा दी जा रही है। अब तक लगभग 2.5 लाख पेशेंट इसका लाभ उठा चुके हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पहले जहां गरीब को मुफ्त डायलिसिस के लिए 100 200 किलोमीटर जाना पड़ता था, अब उसे अपने ही जिले में सुविधा मिल रही है। जब वो इतना दूर नहीं जाता पाता था तो दूसरे अस्पतालों में पैसे खर्च करके डायलिसिस करवाता था। अब गरीब को मिल रही मुफ्त डायलिसिस की सुविधा से डायलिसिस के हर सेशन में उसके लगभग 1500 से 2000 रुपए की बचत हो रही है। इस कार्यक्रम के तहत करीब करीब 25 लाख डायलिसिस सेशन मुफ्त में किए गए हैं। इसके अलावा प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के रूप में योग ने भी नए सिरे से अपनी पहचान को स्थापित किया है। लोग योग की मजाक उड़ाते रहते हैं, लेकिन आज पूरे विश्व में योग ने अपना जगह बना ली है, उसका डंका बज गया है। मैं ये तो कभी नहीं कह सकता कि किसी भोगी को योग योगी बना देगा, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि योग भोगी को रोगी होने से तो बचा सकता है। आज योग दुनिया भर में एक मास मूवमेंट बन रहा है। कुछ दिन पहले ही हमने देखा है कि कैसे पूरी दुनिया में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बनाया गया, और मुझे बताया गया, मुझे एम्स में भी इन दिनों योग की काफी जागरूकता आई है। सारे डॉक्टर मित्र भी योग कर रहे थे, मुझे अच्छा लगा। साथियों, देश के हर नागरिक तक स्वास्थ्य सेवा पहुंचाना इस सरकार का लक्ष्य है, लेकिन आप भी सक्रिय सहयोग के बिना, आपके साथ बिना, यानी पूरी इस मेडिकल दुनिया के साथ के बिना ये संभव नहीं है। आज जब देश न्यू इंडिया के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है, तो हेल्थ सेक्टर से जुड़े लोगों को भी अपने लिए नए संकल्प तय करने चाहिए। 2022 जब आजादी के 75 साल होंगे, मैं अगर मेडिकल प्रोफेशन में हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं और सहायक हूं, 2022 तक हेल्थ सेक्टर में मेरा यह संकल्प रहेगा, जब आजादी के 75 साल होंगे मैं भी इतना करूंगा। ये इस देश में माहौल बनाने की जरूरत है। सरकार साल 2025 तक देश को टीबी से मुक्त करने के लिए कार्य कर रही है। टीबी मरीजों के पोषण को ध्यान में रखते हुए हर महीने उन्हें 500 रुपये की आर्थिक मदद भी दी जा रही है। साथियों, विश्व के अन्य देशों ने खुद को टीबी मुक्त करने के लिए वर्ष 2030 तक का समय तय किया है। हमें देश को जल्द से जल्द टीबी मुक्त करने के लिए संकल्प से काम करना होगा। दुनिया 30 में पूरा करना चाहती है, हम 25 में पूरा करना चाहते हैं। पूरी दुनिया की नजर भारत पर है कि क्या वो ऐसा कर पाएगा। मुझे देश के मेडिकल सेक्टर पर भरोसा है, उसके सामर्थ्य पर भरोसा है कि वो इस चुनौती पर पूरी प्रतिबद्धता से काम करेंगे और देश को यश दिला करके रहेंगे, ये मेरा विश्वास है। ऐसा ही एक महत्वपूर्ण विषय है माता और शिशु मृत्यु दर। जैसा मैंने पहले कहा कि भारत ने पिछले 4 वर्षों में इस विषय पर उल्लेखनीय प्रगति की है, लेकिन माता और शिशु मृत्यु दर को कम से कम किए जाने के लिए हम सभी को मिलकर अपने प्रयासों को और अधिक बढ़ाने होंगे। इसके लिए प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना और राष्ट्रीय पोषण अभियान के तहत मिशन मोड में काम चल रहा है। इस मिशन को अपने जीवन का मिशन बनाकर कार्य किया जाए,
जन आंदोलन की तरह ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनसे जोड़ा जाए तो निश्चित तौर पर जल्दी ही और अपेक्षित परिणाम हम प्राप्त करके रहेंगे। ये इस विश्वास को लेकर आगे बढ़ना है। साथियों, आज देश में ईमानदारी का ऐसा वातावरण बना है कि ज्यादा से ज्यादा लोग राष्ट्र निर्माण की अपनी जिम्मेदारी बढ़ चढ़ करके आगे बढ़ करके उठा रहे हैं। लोगों में ये भाव आया है, ये विश्वास बढ़ा है कि हम जो टैक्स देते हैं उसकी पाई पाई देश की भलाई के लिए खर्च हो रही है। और इस विश्वास का परिणाम समाज के हर स्तर पर हमें देखने को मिल रहा है। आपको ध्यान होगा, मैंने जब लाल किले से देश के लोगों को आग्रह किया था कि जो सक्षम है, जो खर्च कर सकते हैं, ऐसे लोग गैस सब्सिडी क्यों लेते हैं, छोड़ दीजिए ना। इतनी सी बात मैंने कही थी और मेरे इतनी सी बात को इस देश के 125 करोड़ परिवारों ने गैस सब्सिडी छोड़ दी। वरना हमारे देश में ऐसा ही मान लिया जाता है कि भाई कोई छोड़ता नहीं है, एक बार मिला तो मिला। और स्वभाव है, आप विमान में जाते होंगे, बगल में सीट खाली हो, आपकी सीट नहीं है, विमान चलने की तैयारी में है, तो आपने अपना मोबाइल फोन रखा, किताबें वहां रखी, बैग रखी, और इतने में आखिर में कोई आ गया उस सीट पे बैठने वाला, तो क्या होता है? सीट आपकी नहीं है, आप तो अपनी सीट पे बैठे, छोड़ने का मन नहीं करता, ये कहां से आ गया। इस मानसिकता के बीच इस देश में 25 करोड़ परिवार हैं। 25 करोड़ परिवार में से 125 करोड़ परिवार गैस सब्सिडी ये कहने मात्र पर छोड़ दें, मतलब देश की ताकत, देश का मिजाज कैसा है, इसका हम अनुभव कर सकते हैं। एक और बात मैं बताना चाहता हूं। इसी तरह बीते दिनों रेलवे द्वारा, आपको मालूम है, जो सीनियर सिटीजन रेलवे में यात्रा करते हैं उनको सब्सिडी मिलती है, कंसेशन मिलता है। तो मैंने भी कभी इसका ऐलान नहीं किया था, क्योंकि मैं सोच रहा था करूं ना करूं, लेकिन रेलवे ने अपने फॉर्म में लिख दिया कि क्या आप अपनी सब्सिडी छोड़ना के लिए सहमत हो। आप जानकर के आश्चर्य होगा जी, और हमारे देश की इस ताकत को पहचानना होगा। सिर्फ रेलवे के रिजर्वेशन के एप्लीकेशन फॉर्म में इतना लिखा गया कि क्या आप अपने सीनियर सिटीजन का बेनिफिट छोड़ना चाहते हो। और मैं गर्व से कह रहा हूं, पिछले 8-9 महीने के भीतर भीतर 42 लाख सीनियर सिटीजन पैसेंजर्स ने अपनी सब्सिडी का बेनिफिट नहीं लिया, छोड़ दिया। यानी देश के भीतर क्या माहौल बना है जी। ऐसे ही मैंने एक बार देश के डॉक्टरों से आग्रह किया था। मैंने कहा था कि महीने में एक बार 9 तारीख को कोई भी गरीब प्रेग्नेंट विमेन आपके दरवाजे पर आती हैं, आप सेवा भाव से महीने में एक दिन 9 तारीख उस गरीब मां को समर्पित कर दीजिए। उस गरीब की चेक कीजिए, उसको गाइड कीजिए, उसको क्या करना है। और मुझे खुशी है कि हजारों डॉक्टर इस कार्य के लिए बहुत ही सेवा भाव से आगे आए। उनके अपने अस्पताल के बाहर बोर्ड लगा दिया है और 9 तारीख को वहां मुफ्त में सेवा मिलती है। ये जान करके गर्भवती महिलाएं उन डॉक्टरों के पास पहुंचती है। करोड़ों बहनों को इसका फायदा मिला है। मैं चाहूंगा कि हमारे और डॉक्टर मित्र आगे आए। एक ऐसा सेवा का काम है, क्योंकि हम सब ने मिलकर के समस्याओं के समाधान के लिए देश में 2 कदम आगे बढ़ना है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत अब तक देश में 1.25 करोड़ गर्भवती महिलाओं की जांच इन डॉक्टरों के द्वारा हुई है। 1.25 करोड़। मैं इस अभियान में
उन मेरे डॉक्टर मित्रों के सहयोग के लिए, हर मेडिकल प्रोफेशन के लिए काम करने वाले इन सब की प्रशंसा करता हूं और मैं चाहूंगा कि आगे इस बात को आगे बढ़ाएं। यही सेवा भाव इस समय राष्ट्रीय स्वराज अभियान के दौरान किया जा रहा। हमने भी एक कार्यक्रम किया, आपको जरा ये चीजें 24 घंटे चैनल में नहीं दिखाई देती हैं, न अखबार की सुर्खियों में होती है। हमने एक ग्राम स्वराज अभियान किया, एक 17,000 सिलेक्ट किए, उसके कुछ पैरामीटर थे जो यहाँ का वीकनेस था, और 7 काम तय किए। उन 7 काम को वहाँ 100% पूरा करना। उसमें एक टीकाकरण था। इस टीकाकरण के काम को हमने सफलतापूर्वक 17,000 विलेज में पूरा किया। अभी हमने तय किया है कि 15 अगस्त तक 115 जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हमने बनाए हैं, जो आज राज्य की जो एवरेज है उसके भी पीछे हैं लेकिन ताकतवर है, उन 115 डिस्ट्रिक्ट के अंदर करीब 45,000 विलेजेज हैं जहां देश के करीब ग्रामीण जीवन की 40% जनसंख्या इस जगह पर रहती है। उनके लिए भी 7 ऐसे काम बताए जो हमने 100% पूरे करने हैं। उसमें भी एक टीकाकरण है, यानी एक प्रकार से हेल्थ सेक्टर में और देश में टीकाकरण के दायरे को बढ़ाने में अलग अलग सेक्टरों से जुड़े व्यक्तियों ने जिस तरह का काम किया है, मैं समझता हूं वो भी प्रशंसनीय है। ये आप सभी के प्रयास ही हैं, संभव हुआ है कि आज देश के टीकाकरण के बढ़ने की रफ्तार 6% तक पहुंच गई है। 6% सुनने के बाद आपको ज्यादा लगता नहीं है, 6%, लेकिन पहले 1% भी नहीं होता था। आपकी इस प्रतिबद्धता की वजह से देश संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर बढ़ रहा है। देश में हर गर्भवती महिला और शिशु को टीकाकरण का संकल्प नए भारत के निर्माण में, स्वस्थ परिवार के निर्माण में बड़ी भूमिका निभाएगा। साथियों, स्वस्थ परिवार से ही स्वस्थ समाज और स्वस्थ समाज से ही स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण होता है। हम सब पर और विशेषकर आप पर देश को स्वस्थ रखने की जिम्मेवारी है और इसलिए राष्ट्रपति जी भी आपको राष्ट्र निर्माण का एक महत्वपूर्ण पहलू कहते थे। आइए सरकार के साथ मिलकर सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इस निरामय जगत के लिए, निरामय लोगों के लिए इस संकल्प को मन में धारण करते हुए न्यू इंडिया को सिद्ध करने के लिए हम सब आगे बढ़ें। आज यहाँ इस आयोजन में जो सुविधाएं दिल्ली और देश को मिली हैं, उनके लिए एक बार फिर मैं बहुत बहुत बधाई के साथ विभाग को भी बधाई देता हूं कि उन्होंने समय सीमा में इन सारे कामों को पूरा करने का भरसक प्रयास किया है, क्योंकि मेरा आग्रह है कि हम उन्हीं कामों को हाथ लगाएंगे जिसको हम पूरा कर पाएं। वरना हमारे देश में हाल ऐसा था कि पार्लियामेंट के अंदर रेलवे बजट में संसद की पवित्रता, संसद में कमिटमेंट होता है। मैंने मार्क किया, बड़ी बड़ी ध्यान में मेरा आया कि करीब 1500 चीजें घोषित की गई अकेले रेलवे ने पिछले 30, 40, 50 साल में। और मैंने जब पूछा कहाँ है तो कागज पर भी नहीं थी, जमीन पर तो नहीं आई। हम उस रास्ते पर जाना नहीं चाहते हैं, हम पत्थर जड़ने के लिए नहीं आए जी। हम एक बदलाव का संकल्प लेकर के आए हैं और आप सबका साथ मांगने के लिए आए हैं। आपका साथ और सहयोग लेकर के देश की आशा आकांक्षाओं को पूर्ण करने का एक संकल्प लेकर के चल पड़े हैं। मुझे विश्वास है मेरे साथियों, आप भी हमें सहयोग देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कोटिशः धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। भारतीयों के सुख, स्वास्थ्य और
And there we saw the Honorable Prime Minister of the country, Shri Narendra Modi, today coming out ahead and urging the citizens of the country to become more health conscious, to be aware about how yoga can make a benefit and a difference to our lives, and at the same time be cautious and follow the path of a healthy living, healthy eating habits to have a good life. Keeping all of this in mind is why the 5 schemes got launched today. तो जैसा माननीय प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि स्वस्थ समाज का निर्माण से ही स्वस्थ देश का निर्माण होता है, उन्होंने स्वास्थ्य सेवा से जुड़े आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का लोकार्पण किया, राष्ट्रीय वृद्ध अवस्था केंद्र की आधारशिला रखी। उम्मीद करते हैं इन प्रयासों से भारत आयुष्मान भारत बनेगा। नमस्कार।